Assalamualaikum viewers and welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। कैसा लगा आपको मुझे लॉस एंजलिस और लास वेगस में घूमते हुए देख के? मुझे तो इतना ज़्यादा मज़ा आया सारी स्टोरीज आपके सामने पेश करके। सच तो यह है कि लॉस एंजलिस में मेरी मुलाकात इतनी ज़्यादा कलरफुल शख्सियात से हुई कि मैं एक पूरा शो कर सकती हूँ सिर्फ उनकी कहानियों पर। गुड थिंग कि हम हर हफ्ते में 2 दफ़ा मिलते हैं नई कहानियों के साथ। अब जब LA का ट्रिप ख़त्म हो चुका है और हम अपने नॉर्मल फॉर्मेट पे वापस आ चुके हैं, सोचा कि ज़रा LA को प्रॉपर्ली रैप अप करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको अमेरिका में हमारी अगली एग्जॉटिक लोकेशन पर आपको लेके जाऊं। मेरा मतलब यह है कि LA में हमारे ट्रैवल्स के ज़रिए हमने इतना कुछ देखा, सुना और किया कि it wasn't possible to show you everything। लेकिन मैं कैसी आपकी फेथफुल होस्ट होती अगर मैं आपसे कोई बात छुपाती? तो अभी भी थोड़ी सी जूसी tidbits रहती हैं आपसे शेयर करने के लिए। So, without further ado, आइए आपको दिखाते हैं what you missed in Los Angeles। आपको शायद याद है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्स म्यूजिशियन इमरान रज़ा, जिनसे मैंने आपको मिलवाया था इसी शो के ज़रिए। लेकिन जो आपने फुली नहीं देखा वो था उनका अनबिलीवेबल मैंशन। मैलिबू बीच के पहाड़ों में एक मैग्निफिसेंट घर है। ज़रा ये सोचे कि जिनके पड़ोसी में हॉलीवुड फिल्म मेकर स्टीवन स्पीलबर्ग शामिल है, उनका अपना घर कितना मैग्निफिसेंट होगा। This you have to see to believe, and that you will। आइए ज़रा इमरान रज़ा का मैंशन देखते हैं लाइफस्टाइल्स और द रिच एंड फेमस के स्टाइल में। You know what this is? यहाँ पे जो है ये है कि when this property came, it was the thing was best view in Malibu. You know, it's tranquility. इसका नाम है tranquility। सुकून। सुकून। तो मैंने कहा सुकून का क्या मतलब you can't put a price on। तो ये जो कमरा है ये इसमें मेरी we have an amazing sort of movie theater and really good sound. You know, as a musician, obviously sound is very important to me. This is something that actually exceeds the sound levels that you find in theaters. So it's कुछ देर पहले मैं एक दूसरे कमरे में थी and I thought there was an earthquake because you know this area is known for earthquakes, and then somebody else किसी और ने मुझे बताया कि you just had Star Trek playing and that was shaking the whole house. There goes the earthquake now. The camera shake for me. आप ये feel नहीं कर सकते, but there's this breeze coming through because that's the Pacific Ocean right there. All you need is the windows open, no fans, no AC, no nothing, just this natural breeze always wafting through. इसकी जो ये जो hill है ना, his hills, the Santa Monica Mountains. On the other side is the valley. Or valley में is the hottest part of LA. Like you figure today it's probably 114. If it's 100 degrees in downtown, it's maybe 78, 80 degrees here, and 114 over that hill. Wow. ये जो painting है, ये काफी special है. ये एक जो है Jim Morrison, he was the lead singer of The Doors. The Doors, favorite band ever. That is awesome. That it's awesome. Her favorite. Love The Doors. Yes. So there's an order of Dionysus that's quite old, and they happened to get a hold of it, and then they came and gave this painting as well as. So he owned this painting? This was one of his. These two were his favorite paintings. Wow. फिर इधर आएंगे तो आप पहले तो आपको ये दिखाते हैं जिसमें ये साहब बैठे हैं। ये छोटा बंदा जो है, he's been with me since I went to USC. मगर what he's sitting on is, this is an ancient African fertility chair. So ये जो है, this was in a church that the Spanish built, I believe, somewhere in the 1600s in South America. Wow. You know, so it's almost more than 400. I was going to guess that it was from a church because I've always admired the stained glass in churches. And head on up here. This is quite interesting. It's a handmade piece of leather from. Oh, this is leather. अब फिर यहाँ से लेके
See this? Just another. I haven't been out here in months. I keep, you know, यहाँ पे हर जगह is on this property. अगर हम लोग, even we went for a hike down into the hillside that I have. You know, you can find that there's just these amazing views from everywhere, and it really does alter your actual state of being. ये जो painting है, this is the back cover of the song we've done with, you know, Slash and Matt Sorum from Guns N' Roses, and you know, a bunch of Sufi guys from Pakistan. And the idea is that the drone, instead of that money dropping, you know, bombs and zapping, we should be dropping, you know, peace somehow. So it's a great metaphor. That's cool. My favorite room. It's her favorite room, and it's also my favorite room, and I think it was mine first. It's my favorite first before she came and showed up. Yes, it's a creative space. So much of like the music we've done, we have created here. Check out the painting on the walls, and this right here. And then there's that thing called the ocean in Malibu. Love it. Well, thanks for dropping by. आप लोग बहुत मजेदार लोग हैं. मजा आया था. So have a great one. And Do you believe in mermaids? वो जो आधी मछली आधी लड़की होती है. You know, जल परी, जैसे आतिफ असलम ने कहा था. Mermaids do exist. मैं कैसे जानती हूँ? क्योंकि मैं मिली हुई हूँ एक real life mermaid से. In the flesh. Or fin. Anyway, Hannah Mermaid एक प्रोफेशनल मरमेड है, लेकिन ये एक बहुत सीरियस काम है. वो मरीन बायोलॉजी में डीप सी डाइविंग और अंडर वाटर मॉडलिंग की मास्टर हैं, जो वो करती हैं शार्क्स, व्हेल्स और एक्सोटिक अंडर वाटर वाइल्ड लाइफ के साथ. जितना भी ये खूबसूरत और whimsical लगता है, वो इतना ही मुश्किल है. Go check it out. Hi, I'm great. Tell me your names. My name is Dominica, and I'm Hannah. Like Hannah Montana? No, like Hannah Mermaid. Okay. मैं जलपरी का एक प्रोफेशनल मॉडल हूँ और 11 साल से ये काम कर रही हूँ. मैंने अपना पहला रोल उस वक्त किया था जब मेरी उम्र सिर्फ 9 साल थी. What exactly is a professional mermaid? I actually create my own mermaid tails, and they take. मैं अपनी जलपरियों की दुमें खुद बनाती हूँ. हर दुम की तैयारी में 4 माह का वक्त, हजारों डॉलर्स और बेशुमार घंटों की मेहनत लगती है. ये दुमें मुकम्मल तौर पर फंक्शनल और हकीकत के नजदीक होती हैं. मैं समंदर में शार्क्स, डॉल्फिन्स, मैंटा रेज और हर तरह के जानवरों के साथ परफॉर्म करती हूँ. दुनिया भर में अपना शो पेश करने के दौरान मैंने ये देखा कि इस खूबसूरत समंदरी मखलूक को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है. मैंने सोचा कि लोगों की तवज्जो इस जानिब दिलाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए. So I see how the marine biologist and you tie in together. You kind of have the. हमारा ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से है और हम एक साथ काम कर रही हैं. हम ऐसी बहनें हैं जिनकी माएँ मुख्तलिफ हैं. When you tell people that you're a professional mermaid, how do people respond to that? Because I didn't even know what that was until I met you. I get one of either two. मुझे 2 तरह के रिएक्शंस का सामना करना पड़ता है. एक रिएक्शन तो स्पाट चेहरे का होता है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या कहें, और दूसरा रिएक्शन बेशुमार सवालात की शक्ल में होता है. How long can you hold your breath? I can hold my breath for up to 2 minutes. मैं 2 मिनट तक अपना सांस रोक सकती हूँ, और इसके लिए आपको योगा, डांस, एक्सरसाइज समेत बहुत कुछ करना पड़ता है. तब कहीं जाकर आप इस काबिल होते हैं कि जल परी की तरह तैर सके. Column so that you can do this mermaid swimming. It's hard. It's I hard. can tell, but you guys make it look so easy. It's beautiful. You work with live animals like whale sharks and. Manta rays. बड़ी सफेद शार्क के साथ काम करना बड़ा चैलेंजिंग और डरावना तजुर्बा है. Tell me about that. I was in Mexico and Guadalupe, and I went to swim with great white sharks. मैं एक बार मेक्सिको में थी और मुझे सफेद शार्कों के साथ तैरना था, अगरचे मुझे मौत का भी डर था. कई हफ्तों तक उनके साथ ये शो करने में मेरा वजन 20 पाउंड कम हुआ और मैं डरावने ख्वाब देखती रही. लेकिन मुझे ये शो इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्हें बड़ी तादाद में हलाक किया जा रहा था और उनकी तादाद तेजी से कम हो रही थी. Have you had any horror stories? I was swimming with Caribbean reef sharks. एक बार मैं कैरिबियन समंदर की बड़ी शार्क मछलियों के साथ तैर रही थी कि अचानक एक शार्क मेरे इंतहाई करीब आ गई और उसने मेरी टेल पकड़ ली. फिर उसने मुझे झटके देने शुरू कर दिए. खुशकिस्मती से मैं काफी तरबियत याफ्ता थी, जिसकी वजह से मैं खुद को बचाने में कामयाब हो गई. ये मेरे लिए बहुत डरावना तजुर्बा था. Limp, and he let me go. Because apparently I don't taste very good. Oh my God. Good for you that you don't taste good. Sorry. Wow. Well, that is amazing. Keep doing what you do. That's an awesome story to tell. Now I'm going to go back and tell people that I met a professional mermaid. Thank you so much, guys. Thank you. And best Thank of you. luck with your endeavors. Thank you. Thank you so much.
हॉलीवुड और स्टार्स अक्सर एक ही सेंटेंस में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। Whether at the Griffith Observatory या at the Hollywood Walk of Fame, LA में स्टार्स हर जगह नज़र आते हैं। अब वो स्टार्स जो हाल ही में या वो स्टार्स जिन्होंने बहुत साल पहले अपना मार्क छोड़ा है और अपनी लेगेसी बनाई है ना सिर्फ हॉलीवुड में बल्कि पूरी दुनिया में, उनके निशान को देखने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं to the Hollywood Walk of Fame। हम भी गए। Take a look। So excited। में बहुत सारी मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। उनमें से एक है द जे पॉल गेटी म्यूजियम, जिसको आमतौर पे कहलाते हैं द गेटी। द गेटी एक आर्ट म्यूजियम है जिसकी दो साइड्स हैं, द गेटी विला एंड द गेटी सेंटर। मैं गई थी टू द गेटी सेंटर जहाँ पे मैंने खुद से उसकी खूबसूरती महसूस की एंड आई गॉट टू सी सम ऑफ द फेमस वर्क्स ऑफ सम ऑफ माय मोस्ट फेवरेट पेंटर्स। आइए आपको भी दिखाते हैं। गेटी सेंटर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये दुनिया में सबसे बड़ी आर्ट लाइब्रेरीज में से एक लाइब्रेरी यहाँ पे है। द डिफरेंस बिटवीन आर्ट गैलरी और आर्ट लाइब्रेरी है कि लाइब्रेरी में आपको आर्ट के बारे में लिटरेचर मिलता है और बहुत पुरानी किताबें मिलती है that they've scanned into the system। यहाँ पे आर्ट मिलता है from the medieval era to the impressionist era। ये मेरे फेवरेट पेंटर विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग आयरिसेस है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिप्रोड्यूस्ड होने वाली में से एक है। गेटी सेंटर में खूबसूरत आर्ट वर्क्स और आर्ट लाइब्रेरी मिलता है ये, लेकिन इसके साथ एक कंजर्वेशन सेंटर भी है। कंजर्वेशन का मतलब है पुरानी आर्ट वर्क्स को रिपेयर करना और साफ करना। यहाँ पे ये ना सिर्फ अपनी करती हैं लेकिन पूरी दुनिया अपनी आर्ट वर्क्स यहाँ पे भेजती हैं कंजर्वेशन के लिए।
अमेरिका में बहुत ज़्यादा आर्ट्स के लिए एफर्ट्स और पैशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे इसी तरह आर्ट एंथुसियास्ट्स मिलते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स और जेम्स डीन्स रेबल विदाउट अ कॉज के बीच में व्हाट्स इन कॉमन? वही जगह जहाँ पे दोनों फिल्मों की कोई सीन्स शूट हुई हुई है, द ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी, जो एक ऑब्जर्वेटरी है जहाँ से आसमान वाले सितारे नजर आते हैं, कभी कभी हॉलीवुड स्टार्स के साथ। इस खूबसूरत स्पेस और साइंस डेस्टिनेशन से लॉस एंजलिस और पैसिफिक ओशन के काफ़ी ब्यूटीफुल सीनरी नज़र आती है, तो हमने सोचा कि हमारे ट्रिप के दौरान ज़रूर यहाँ पे स्टॉप करना होगा एंड पे दिस वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अ विजिट, चाहे बाहर से ही। एनीवे, आपको दिखाती हूँ। होपफुली अगले LA के ट्रिप में हमें अंदर जाने का भी मौका मिलेगा। तो मैं तुम्हें लेके आई हूँ टू द ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी। हाँ, ब्यूटीफुल है ना? नो डाउट। तो ये जगह बनी थी, डोनेट हुई थी फ्रॉम कर्नल ग्रिफिथ जे ग्रिफिथ, ये वाकई में उसका नाम था, कर्नल ग्रिफिथ जे ग्रिफिथ, अच्छा 1896 में। वो तो उसने अपने विल में पैसे डोनेट किए थे टू क्रिएट दिस प्लैनेटेरियम ऑब्जर्वेटरी एग्जिबिट हॉल, क्योंकि इसकी सोच ये थी कि ही वांटेड समथिंग दैट वाजंट इन द रिमोट एरियाज एंड इजीली एक्सेसिबल था जनरल पब्लिक के लिए। तो ये एक प्लानिटेरियम है जहाँ पे आप आके स्टार्स देखते हैं। तो ऑब्जर्वेटरी को दूसरे किस्म के स्टार्स, इज इट कॉल्ड ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी। स्टार्स के बारे में तो हमने काफ़ी बातें कर ली हैं, लेकिन व्हाट अबाउट वो लोग जो स्टार्स बनने का ख्वाब देखते हैं? मैं जानना चाहती थी कि व्हाट इट्स लाइक टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड मूव टू द सिटी ऑफ एंजल्स टू परस्यू योर ड्रीम्स। तो मैं मिली एक ऐसी खातून से जो लाखों होपफुल्स की तरह LA अपना नाम बनाने के लिए आई है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं केली एन केलैक से। नाजरीन, मेरे साथ बैठी हुई हैं केली एन केलैक, who's moved here all the way from Maryland, by the way, and is a baby in the city of LA. Kelly, thank you so much for having us here today. Thanks for coming. So, I find this really fascinating. You moved over from Maryland to LA not too long ago. What brought you here? I mean, you just upped and moved, and that was it. Well, I lived in Maryland for several years, and मैं कई साल मैरीलैंड में रही। मैं वहाँ एंटरटेनमेंट और आर्ट के शोबे से मुंसलिक थी। सारी उम्र मैंने यही काम किया है। मैंने सोचा कि मैं जो काम करती हूँ उसके लिए सबसे अच्छी जगह न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस है। the best place to be was either in New York or LA. How long did it take for you to move from the point of saying, I want to move to LA to actually getting here? Well, I had the idea about probably 2 years before I did it. I had to save up. Responsible. Yeah, 'cause luckily I had. यहाँ आने से 2 साल पहले मैंने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया था। यहाँ आना ऐसा नहीं कि बस आपने सोचा और आ गए। Super easy, so it wasn't, and I was ready for that. So. You move over here with no network. What's it been like transitioning? What's it been like building that network? यहाँ आने वाला हर शख्स ये सोच कर आता है कि वो बहुत कुछ करेगा, तो यहाँ आकर वो उसी तरह के बहुत से लोगों में घिर जाता है और हर शख्स चाहे वो कुछ भी कर रहा हो उसे यहाँ भी कुछ न कुछ मिल ही जाता है। Do you think that's a good thing in that it forces you to be a better you? What I found is that मैंने महसूस किया कि यहाँ अपने लिए जगह बनाने का मतलब है ज्यादा मेहनत करना, और उसका मतलब है कि मैं खुद ब खुद ऊंचे तरीन मकाम पर नहीं पहुँच सकती। उसके लिए मुझे हकीकतन सख्त मेहनत करना होगी और मुझे अपनी सलाहियतों और नेटवर्क दोनों को बेहतर बनाना होगा। and it's more about
who you know, and it, और मजीद ये भी कि आप किस किस को जानते हैं और ये कि आप खुद को किस तरह पेश करते हैं। Tell me about what it is that you do exactly, because you do quite a bit of things. so I took like the, मुझ में जो सलाहियतें मौजूद हैं मैं उन्हें अपने इस्तेमाल में लाती हूँ। यानी वेब मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर मैं काम करती हूँ। and volunteer Working with your coordinator hands. and stuff like that. And I came out here and I was like, what can I do? So I do. मैं फिल्म इंडस्ट्री के मुख्तलिफ शोबों में फ्रीलांस भी करती हूँ। मैं उनके आर्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करती हूँ और इसी तरह मैं उनकी मुख्तलिफ तकरीबात और ब्रांड्स के मैनेजमेंट स्टाफ के तौर पर भी काम करती हूँ। And I also work a lot still in event and brand management stuff. So tell me about what you've done in production. I was doing the scenic. मैंने सीनिक पार्ट्स और तख्लीकी शोबों के लिए भी काम किया है। स्टूडियोज में ज़ेरे ज़मीन बंकर्स बनाने हों या दीवारें खड़ी करनी हों या मखसूस किस्म के चेम्बर्स बनाने हों या फिर ऐसे दरवाजे बनाने हों जो धात के दिखाई देते हों लेकिन असल में लकड़ी के हों। तो मैं इस तरह के बहुत से काम कर चुकी हूँ और अपने इस काम को भी मैंने काफ़ी एंजॉय किया है। And all these things, and I just had a great time. This is the place to do what you're doing. Where do you see yourself going? I mean, do you want to stay in production? Do you want to stay in promotional modeling, or do you have other plans? Eventually, I'd probably want to isolate into one or the other. मैं ज़ाती तौर पर किसी एक शोबे पर तवज्जो देना चाहती हूँ और उसके साथ साथ अपने आर्ट पर भी काम करना चाहती हूँ। मैंने इस सिलसिले में कुछ काम किया है और कुछ चीज़ें भी बनाई हैं। Art creations that I want to make. Do you have any advice for people who are trying to make it in not just LA, but make a move to another city, and people who are trying to make it in the industry? आपको इस मकसद के लिए उससे कहीं ज्यादा रकम जमा करनी चाहिए जितना कि आपका ख्याल है कि आपको जरूरत पड़ेगी। A lot more. Very responsible of you. And if you're coming from a small, अगर आप किसी छोटे शहर या छोटी जगह से जहाँ आए हैं तो हो सकता है कि आप वहाँ बेहतरीन एक्टर थे या बेहतरीन आर्टिस्ट थे और वहाँ की कम्युनिटी में आपको बेहतरीन मॉडल का मकाम हासिल था, लेकिन यहाँ आप किसी को नहीं जानते और कोई आपकी परवाह नहीं करेगा। यहाँ आकर आपको कुछ सब्र और हौसले से काम लेना होगा और हो सकता है कि यहाँ आपको कुछ ऐसा काम भी करना पड़े जो आपके ख्याल में आपकी हैसियत से कमतर है। and it'll Work your take- way up from the bottom, and you have to do whatever it takes. Yeah, it's whatever it takes out here. यहाँ आपको नेटवर्क बनाने में कुछ वक्त लग सकता है। Excellent advice. Stay humble. I feel like you were just born to be in LA. Thank you so much for giving us your time. I really appreciate it, and I hope our viewers also have gotten some inspiration and motivation from speaking with Kelly, as I have. I'll be moving here, and I'll be your neighbor in a little bit. Great. Thank you. अमेरिका को साथ साथ एक्सप्लोर करते हुए कितना मज़ा आ रहा है ना? लेकिन अब अफसोस की बात है क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि हम लॉस एंजलिस और लास वेगस को अलविदा कहें, और इस एपिसोड को भी। लेकिन फिक्र मत करिए क्योंकि कहानी पाकिस्तानी के ज़रिए मैं आपको पूरा अमेरिका दिखाऊंगी। कोशिश तो ये है अगले एपिसोड से मैं आपसे मुलाकात करूंगी एक नया शहर से नई कहानियाँ के साथ। लेकिन जाने से पहले यू नो व्हाट टू डू, हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे इन टच। अब अगले एपिसोड में कहानी पाकिस्तानी और आयशा गिलानी आपसे कहां से मुलाकात करेंगे? You'll just have to watch to find out. खुदा हाफिज़।